ماننا پڑے گا. جب اللہ کے پاؤں مانو گے تو اللہ کا سر بھی ماننا پڑے گا. جب اللہ تعالیٰ کا سر مانو گے نا تو پیٹ بھی ماننا پڑے گا. چلے تھے جو یہ بنانے اور جب ہاتھ مانو گے تو پورا بت بنا لیا اور بت بناؤ گے تو شرک خود کرنا پڑو گے. تو جس کے ہم ہاتھ چومیں گے تو وہ کیا پتا کہ جس کے ہاتھ چوم لے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے. قرآن پاک میں آیا ید, اس کا اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ ید کیا ہے اپنے دست قدرت. تو ہم حضرت سیدنا علی اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس داغ کو چومنے لگے اور کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نام جو ہے نا انا رائی یعنی میں چرواہ ہوں. پھر پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے, کہتے ہیں میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ یا اے علی یہ تو جو ہے نا نام کچھ اور بتا رہا ہے, اپنا نام صحیح سے نہیں بتا رہا. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر اگر یہ کہتا ہے کہ فقیر ہے تو میں فقیروں کا بھی امیر ہوں. اے علی اے عمر اس سے مجھے نمٹنے دو, میں نمٹتا ہوں اس سے. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او بندے تجھے قسم ہے اللہ کی وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے. اب بتائے بھی نہ بنے نہ بتائے تب بھی نہ بنے, آخرکار بتانا پڑا کہ میرا نام کیا ہے. کہتے ہیں او علی تم نے مجھے فاش کر دیا, تم نے مجھے فاش کر دیا, میرے راز کھول دیے. او علی میرا نام اب ایسے کرنی ہے, کرم کا رہنے والا ہوں, میرا نام اب ایسے کرنی ہے. سبحان اللہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر, تو وہ دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کر, سب کے لیے دعا کر, ہمارے لیے بالخصوص دعا کر. تو ایسے کرنے کہتے ہیں میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. حضرت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کے لیے کر لیکن ہمارے لیے بھی کر. ایسے کرنے کہتے ہیں میں سب کے لیے کرتا ہوں. کہا کہ تو مانتا نہیں ہے, سب کے لیے کر لیکن ہمارے لیے بھی کر, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہاری نشانیاں بتا کر تمہارے یہاں بھیجا ہے. کون سبحان اللہ, حضور علیہ السلام نے تمہاری نشانیاں بتا کر ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا گردن جھک گئی, گل جھک گئی, دعا کرنے لگے. یہ اللہ والوں کے اوصاف ہوتے ہیں. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے اس کو کہنا, میں نے شروع میں کہا تھا مجہول فی الارض و معروف فی السماء, یعنی حضرت سیدنا اویس کرنی ایسے تھے کہ دنیا میں جو ہے نا اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, لیکن آسمان میں اویس کرنی کے چرچے ہوا کرتے تھے. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے بزرگ مجذوب بندے تھے جو پتھر, گاؤں کے بندے جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے, اس کو پتھر مارا کرتے تھے اور وہ خوش ہوا کرتے تھے کہ بچوں مجھے پتھر تو مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ جو ہے نا بڑے پتھر. انہوں نے کہا کہ آخر پتھر مارے اور کہتے ہیں مارو لیکن چھوٹے چھوٹے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم بڑے پتھر مارو گے تو میرا خون نکلے گا, مجھے لگیں گے خون نکلے گا اور خون نکلے گا میرا وضو ٹوٹ جائے گا, جب وضو ٹوٹے گا تو میری نماز رہ جائے گی. سبحان اللہ. مجذوب بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جن کو فکر ہے تو کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے. ہم دیکھیں ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے, ہم آخر کن باتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یا نہیں ہے؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں یا نہیں ہے؟ میں اکثر بتایا کرتا ہوں نماز جو ہے نا بہت ساری نماز ہے. ایک بندہ کیا ہوگا صرف کیا کرے گا, وہ جنازے والی نماز پڑھے گا بس. ایک بندہ کیا جنازے والی نماز پڑھے گا. دوسرا بندہ کون سا ہوگا, عید والی نماز پڑھے گا. تیسرا بندہ کون سا ہوگا, جو جمعے والی نماز پڑھے گا. اور خوش نصیب ہوگا جو کون سا نماز پڑھے گا. سبحان اللہ. ہم میں سے ایسی کیٹیگری بن گئی ہے. اور وہ جمعے والی جو جنازے نماز پڑھنے آئے گی نا, وہ صرف رسمی طور پہ آئیں گے, کیا کریں گے, کھڑے ہو جائیں گے, دیکھتے ابھی یہ مولانا صاحب یا قریب والے کیا کر رہے ہیں, تم پر جو فرض تھے وہی تمہیں نہیں سکھا. تو اسلام میں صرف مسلمان نام ہے. آج ہم پر مسلمان ہوتے ناطق جو ہے نا, ہم پر فرض جو چیزیں کی گئی نا
कि हमें वक्त भी मिला है, जवानी भी मिली है, हर शय मिली है, लेकिन हमने क्या इस्लाम से फिर भी हमारी दूरी है। और अगर किसी जनाजे में आते ना, जब नहीं आता ना, क्या करते, कहते हैं भाई हमारे कपड़े पाक नहीं है। और उस बंदे को सोचना चाहिए, मेरी दोस्ती तो मेरी ये है कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत किया करता था, आज वो मेरा जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कहता है मेरे कपड़े पाक नहीं है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जो ना 3 दोस्त होते हैं। कितने होते हैं? 3 दोस्त होते हैं। पहले कौन सा होता है दोस्त? कि वो जो इस दुनिया में अपने माल, पैसे, जायदाद जमा करता है ना, पहला दोस्त इसका ये होता है। जब इंसान की जो है ना रूह जिस्म से निकल गई ना, ये दोस्ती जो है ना इससे अलग नाकाम हो गई, हट गई। अब लाखों रुपए हो ना, करीब में पड़े हो, लेकिन इसके किसी काम के नहीं। पहली दोस्ती ये वफा नहीं करती। दूसरी दोस्ती कौन सी है? दूसरी दोस्ती ये होती है जो करीब वाले दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, उनसे जो है ना मेल जोल रखता है, जिनकी खातिर जो है ना राते राते अपनी बर्बाद कर देता है, उनके साथ जो है ना नाजायज ताल्लुकात, या उनकी खातिर जो है नमाज का टाइम है लेकिन उनसे गप्पे में लगा हुआ, बातों में लगा हुआ है, जिनकी खातिर अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही है लेकिन वो नमाज की तरफ आता नहीं है, उनसे बातों में लगा हुआ है। कहते हैं जब उसकी रूह चली गई तो ये बंदे भी क्या है, कितनी देर करेंगे उसको मोहब्बत, सिर्फ कांधों पर उठाकर अंदर रख देंगे, जमीन में बस ऊपर से मट्टी छड़ के कुल वल्लाह भी आता होगा या नहीं होगा, सिर्फ ऐसे करके चले। ये दूसरी दोस्ती भी करेंगे। ये दो दोस्त ये होगी। आखिरी दोस्त इसकी कौन सी? आखिरी दोस्त इसके ये है कि जो इसने नेक साले अमल किए होंगे ना, वो इसके साथ। और यही दोस्ती इसकी जो है ना कामयाब और कामयाब। अगर इस दोस्ती में अपने आप को नेक कामों में लगाया ना, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दोस्ती के सदके उसको कल बरोज क़यामत में क्या इसके मामला आसान हो जाएंगे। हमने देखे हम कितने नेक काम करते हैं। आज मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कहते हैं भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। वो क्या कहते हैं, भाई नमाज पढ़ना, नेकी का काम करना, ये तो मुल्ला लोगों का काम है। मुल्ला लोग होंगे देवबंद, हम तो मुल्ला है नहीं, हम तो कारी साहब है, मौलाना साहब है। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि अगर वो नेकी करेंगे तो इंसान तो तुम भी हो। क्या इंसान तो तुम भी हो? जैसी जान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दी है, वैसी जान ही जो है ना उस मौलवी को दी है। लेकिन क्या नमाजें वो पढ़े, तहज्जुद वो पढ़े, सब कुछ वो काम करे, फिर तुम क्या करोगे? वो साहब आज दुनिया में जिस तरह जो है ना हर कोई अपना जवाब देता है, तो कल बरोज क़यामत भी जो है ना हर कोई अपना ही जवाब देगा, कोई किसी का जवाब नहीं देगा। कल बरोज क़यामत तो ये भी आता है कि जो है ना अगर किसी की नेकियां कम पड़ गई तो वो अपनी माँ के पास जाएगा, जिसके लिए कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। बाप का एक मोहब्बत भरी आंखों से दीदार करना, एक मबरूर हज का सवाब मिलता है। कहते हैं एक मोहब्बत भरी नजरों से देखो, सिर्फ एक हज का सवाब मिलता है। वहां पर जाओ, पता नहीं हज तुम्हारा कबूल हो या ना हो, लेकिन बाप को एक मोहब्बत भरी नजरों से देखो, तुम्हारे एक हज का जो है ना सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन कहते हैं कि अगर उस जब इस दुनिया से सारे खत्म हो जाएंगे, कल बरोज क़यामत मामला शुरू हो जाएगा, तो कहते हैं उस टाइम जो है ना कोई किसी का काम नहीं आएगा। बाप भी कहेगा कि आज मैं अपने लिए, आज दूसरों के पास जाऊं, आज दूसरों के पास जाऊं। माँ के पास जाएगी, माँ भी यही कहेगी कि दूसरों के पास जाओ, आज ले उनसे बना, आज मदद उनसे मांग, कल न मानेंगे कल तुम मान गए। तो अपने जिंदगी को जो है ना संवारें। ये दीन जो है ना सबके लिए जरूरी है, सबके लिए। आज मैंने एक वीडियो देखी जो निहायत ही मुझे अफसोस हुआ। क्या हुआ, इस वीडियो में एक उस्ताद होता है, टीचर होता है, स्कूल का बच्चों को क्या कहता है कि हमने जो है ना अपने स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाई है, तो जो आपके घरों में एक किताबें रखी होती है, फालतू जो किताबें होती है ना, वो हमारी लाइब्रेरी में रखी जाए, ताकि वो बच्चे जो आएंगे ना उसको पढ़े और वो किताबें दोबारा से पढ़ने लग जाए। तो बच्चों ने कहा इंशाल्लाह सर हम सुबह जो है ना वो किताबें लेके आएंगे। जब क्लास का एंड हुआ, सुबह सारे बच्चे आए, टीचर आया, पूछा बताओ भाई कल मैंने तुम लोग को एक काम बोला था कि जो किताबें नहीं पढ़ी जाती वो तुम हमारी लाइब्रेरी में ला के रख देना, ताकि इनकी दोबारा पढ़ाई हो सके। ताकि तुम लेके आए हो? कहा कि हाँ हम लेके आए। कहा कि चलो लाओ फला नाम किसी का लेके, फला बच्चे तुम दिखाओ क्या है। तो वो देखता है वो पुरानी बात लेके आए, क्या पुरानी बात लेके आए। चलो बच्चे तुम दिखाओ तुम क्या लेके आए। दूसरे ने देखा पुरानी बात लेके आए।
तीसरे से पूछा तुम बताओ क्या लेके आए हो? तो उसने भी कहा कि मैं जो है ना कुरान पाक लेके आया। क्या कि सब बच्चे तुम लोग क्या कुरान पाक लेके आए हो? तो एक बच्चा खड़ा हो गया, कहा कि टीचर आजकल जो है ना हमारे घरों में यही नहीं पढ़ी जाती, बाकी इंग्लिश ग्रामर जो भी किताबें सारी पढ़ते हैं। अगर टीचर होगा तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि आज मुझे बच्चों को समझाना है। कुरान पाक की जो रखा होता है सिर्फ हम क्या तकद्दुस के लिए रखा होता है, इसको तो चूम कर रख देते, बाकी पढ़ना नहीं है, सिर्फ अपने कामों में मसरूफ है। यही किताबें जो हम पढ़ते नहीं। आज मुसलमानों की गैरत कहाँ चली गई? मैं कहता हूँ जिस कुरान के सदके में हमारे घर चल रहे हैं, जिस कुरान के सदके में हम खा रहे पी रहे, हमने उनको ही छोड़ दिया। सारी किताबें पढ़ते लेकिन पढ़ते नहीं तो क्या कुरान पाक नहीं पढ़ते? जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैं इस बंदे, अगर कोई बंदे से गुनाह हो जाए तो इसका एक हरफ पढ़े तो मैं इसको 10 लिखे। इस कुरान पाक को अगर कोई चूमे तो इसका भी सवाब है, देखे तो इसका भी सवाब है। सिर्फ घर में रखना सवाब की काम नहीं है, उसको देखो तो सही मट्टी कितनी जागी। हम बड़े कहते हैं कि दूसरे ममालिक में क्या कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है, इसको जलाया जा रहा है, ये हुआ जा रहा है, वो हुआ जा रहा है। इसके खिलाफ ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एहतजाज करते हैं कि हमने जो है ना कुरान पाक की बेइज्जती हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये कहते हैं। लेकिन मुसलमान के घर में जाकर कुरान पाक की हालत देखो कि वो कितने सालों से बंद पड़ा हुआ, वहां पर मट्टी छा गई है। हमने क्या कम किया है? वही सिर्फ गुस्सा क्या करें तो वही है, हम मोहब्बत वाले अहले मोहब्बत है, कुरान पाक के लिए जान भी फिदा कर देते हैं। लेकिन हमने क्या हक अदा किया कुरान पाक से मोहब्बत? हमने क्या कुरान पाक पढ़ा है? एक बच्ची है जिसने पैसे कई बार छुपा कर रख दिए, तो कहा कि ये पैसे बहुत कीमती पैसे दिए, ज्यादा पैसे बच्ची ने छुपा दिया। तो अबू जो है ना बच्ची से मोहब्बत करता था, कहा कि बच्ची बताओ पैसे क्या? उसने कहा अबू ढूंढ लो तुम्हारे वरना नहीं दूंगी। क्या ढूंढ लो वरना नहीं दूंगी? उसने बहुत ढूंढा लेकिन पैसे नहीं मिले। कहा कि बताओ कहाँ है? बोले चलो अगर मैं बता दूंगी तो इसमें से आधी रकम मेरी आधी तुम्हारी है। तो कहा चलो सही है। तो उसने क्या किया, जब वो लेके आई तो कुरान पाक लेके कुरान पाक के बीच में पैसे उसने छुपा कर रख दिए। तो कहने लगा बच्ची यहाँ पर छुपाने का मकसद क्या है? कहा कि अब्बा मुझे पता है ये कुरान पाक कोई खोलेगा नहीं, इसलिए पैसे तुम्हें मिलेंगे। ये मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने क्या कुरान पाक से मोहब्बत की? कुरान पाक को रोजाना पढ़ा करें। मैं अपने ऊपर गौर करूँ, आप अपने ऊपर गौर करें। हमने कुरान पाक को कितना पढ़ा है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मेरी कोई सुई गुम हो जाती है मैं वो भी कुरान पाक से। हमने कितना किया? हमें कोई परेशानी आई क्या? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें जो है सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है। वो खोलो ना कुरान पाक, उसका कुरान पाक पढ़ के अपने रब ताला को अर्ज करो ना, ऐ मौला ये बीमारी देने वाले भी तू है, दूर करने वाला भी तू है। ऐ मौला ये बीमारी देने वाला भी तू है तो दूर करने वाला भी तू है। और कोई क्या सबब है? हट सकती है, लेकिन पहले जो है ना तू ही दूर करने वाला है। ऐ मौला मेरी ये परेशानी दूर कर। लेकिन हम क्या इंसान माफ नहीं। तो आप सब लोग नियत करें कुरान पाक को सिर्फ कुरान पाक को खोल कर देखें, पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला के इंसान का जो दिल पत्थर हो चुका है ना, कुरान पाक को देख कर खोल कर पढ़ने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। इंसान का दिल कहते ये कुरान पाक ऐसा है ना कि बड़े बड़े पत्थर दिल भी इसके सामने मोम बन जाते हैं। तो पढ़ेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें जो है ना नेक वलियों की सीरत पर चलकर उन पर अमल करने